So what I have done, I have already created some file or data, you can say, based on just a discussion. So हम लोग यहाँ पे आज what we are going to learn, we are going to learn reading the data from different files. Okay. So one is, you can see what I have done in case of this playwright folder. I have created a new, और उसके अंदर मैंने multiple files create किए. तो file can be created with the help of this button. So first of all, we'll learn about user.json. So when I click on this new file, I'll give the name as user.json. The moment you give .json, this kind of icon will come, curly braces, because वो object को represent करता है. ठीक है, JSON object. तो मैंने simple curly braces में क्या दिया है, username, Unicode test1, password, Unicode test1. Whatever data you want to give, you can give. Right now, I'm trying to fetch this particular data from the JSON file. So JSON stands for JavaScript Object Notation. Okay, JavaScript Object Notation. It's like a JavaScript का जो object है उसका notation है, तरीका है लिखने का, है ना. तो object हम लोग किस तरह से बनाते हैं, curly braces, and then we have key and value pair. So this is key and this is value, like username और उसकी value Unicode test1. अब ये फाइल का ये डेटा मुझे रीड करना है, ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है इंफॉर्मेशन, वो मुझे मेरे टेस्ट में रीड करनी है. तो हाउ कैन आई डू दैट? सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव फर्स्ट ऑफ ऑल said import star as user data from data user.json file. And I'm just saying import star as user data. Yani star means all the information as user data from where, from user.json file. So मैंने इसका सिर्फ path दिया है, ठीक है. And then मैंने नीचे comment किया होगा. Let me uncomment that part first of all. So I have this information. So I have this particular test which is opening the demo place. You are clicking on the login button. Okay, but click करने से पहले I have to perform certain actions. I have to fill username and password, and then I have to click on the login button. So that was different. That was clicking on the link. So clicking on the login link, and then that pop-up will open, and then उसमें हम pass करें. तो अगर यहाँ देखोगे तो login username और login password है. And in case of fill method, we are using user data dot username. तो user data कहाँ से आ रहा है? It is coming from this page, user data. So I am importing everything as user data from user.json file. That is simple import statement here. और ये user data क्या represent करेगा? This user data will represent this entire JSON object. और उससे फिर हम लोग यहाँ पे read करते हैं user data dot username and then user data dot password. सर सॉरी टू इंटरप्ट, हम क्या फ्रेमवर्क बना रहे हैं सर? नहीं फ्रेमवर्क नहीं बना, अभी सिर्फ हम रीड कर रहे हैं डेटा. अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन जेसन फॉर्मेट में स्टोर की होगी तो आप उसे रीड कैसे करोगे? ओके. तो सबसे पहले तो हमने सीखा कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर. तो कैसे स्टोर करेंगे? सिंपली मैंने एक डेटा फोल्डर बनाया, राइट, और उसमें एक user.json फाइल बनाई. आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यूजर नाम देना है या कुछ भी नाम. .json विल बी द एक्सटेंशन. ओके, और उसमें मैंने इंफॉर्मेशन फीड कर दी, यूजर नेम और पासवर्ड को. अब मुझे इस डेटा को रियल में जैसे हम टेस्ट केसेस रन करते हैं तो जेसन को रीड करने का कब जरूरत पड़ेगा सर? लाइक रियल लाइफ में बता रहा हूं ना, जब आपको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जैसे लोकेटर्स है, मैं सारे लोकेटर्स जेसन फॉर्मेट में स्टोर कर सकता हूँ.
सी जेसन रीड करना थोड़ा कंपैरेटिवली फास्टर है कंपेयर टू CSV, है ना, और एनी अदर काइंड ऑफ डेटा। तो आप जेसन में स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी तक आपने एक्सेल शीट में स्टोर किया था ना Yes, सेलिनियम sir. में डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के लिए, यहाँ पे हम जेसन में भी स्टोर कर सकते हैं। Okay, sir. उसको रीड करना सिंपल है, आपको सिर्फ एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है, ओके, और जो भी आप यहाँ पे दोगे कीवर्ड दैट डॉट योर की यूजर नेम और पासवर्ड, सिंपल। और मैंने इस फिल मेथड में यूज किया, आप Yes, sir. दूसरी मेथड में जैसे यूज करना चाहते हो, इट्स वेरी सिंपल। एक पहले जेसन फाइल बनाओ, उसमें कुछ आपकी की वैल्यू पेयर्स है, वैल्यू को रीड करने के लिए की को एक्सेस करना है, वो हम इस तरह से एक्सेस करें। क्लियर अप टिल दिस पार्ट, जेसन को रीड करना। Yes, sir. सर ये जेसन फॉर्मेट जो है वो एपीआई टेस्टिंग में पोस्टमैन में भी वही मिलता है ना? हाँ 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 हाँ, वही वही जेसन फॉर्मेट, क्योंकि वहाँ पे भी आपके जावा स्क्रिप्ट ही रहते हैं ना, जावा स्क्रिप्ट ही आप देखोगे, जो कमांड्स लिखते हो ना, पीएम डॉट करके लिखते हो पोस्टमैन, हाँ सर. पीएम सिंबलाइजेस पोस्टमैन ऑब्जेक्ट, तो पीएम डॉट करके टेस्ट ऐसे लिखते हो, वहाँ भी एरो फंक्शन वैसे डाल सकते हैं। चलो अभी नेक्स्ट वन इज रीडिंग CSV फाइल। CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ओके, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हमने अगेन डेटा में क्या किया, एक और न्यू फाइल क्रिएट की, उसका नाम क्या रखा, users.csv, ओके, users.csv। आप अगेन यू कैन गिव एनी नेम और इंफॉर्मेशन भी आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। ये काइंड ऑफ एक्सेल शीट जैसा ही है, जो आप एक्सेल शीट में रिकॉर्ड स्टोर करते हो, यहाँ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, यूजर नेम कॉमा पासवर्ड, ये आपके टॉप रो हो गए, उसके नीचे आपकी वैल्यू होगी, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वैल्यू, so यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, कॉमा सेपरेटेड। तो ये आपने पहले डेटा क्रिएट कर दिया, अब इस डेटा को रीड करना है मुझे, इंफॉर्मेशन को रीड करना है, तो हाउ टू रीड, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट किया। सो व्हाट आई हैव डन, डायरेक्टली भी आप अपने प्रोग्राम में रीड कर सकते हो, उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट फंक्शन क्रिएट करना इज गुड, बिकॉज मल्टीपल प्लेसेस पे आपको CSV रीड करनी है, आपके मल्टीपल CSVs हैं, तो यू कैन डू दैट, है ना। सो दैट्स द रीज़न हमने अभी फिलहाल users.csv बनाई, और उसको रीड करने के लिए सिंपल सा रीड csv.ts फाइल क्रिएट की, जो आपके सिंपल टाइपस्क्रिप्ट फाइल होती है, वो स्पेक फाइल नहीं है, और उसमें एक सिंपल सा हमने फंक्शन क्रिएट किया। अच्छा, ये सब करने से पहले वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू, यू हैव टू इंस्टॉल दिस CSV पार्सर, तो npm install CSV parser, okay, this line you have to write in your terminal and then execute, okay. I'll share this one, this is for CSV parser and this is for Faker library. So Sir, anyways, what ये is मैं the आपको use of what is the use of Faker, sir? Faker I'll explain you. Faker is, मैंने जैसे कल बताया ना, Faker is going to give you fake data, temporary data. So I'll come to that point. अभी हम CSV सीख लेते हैं, उसके बाद Faker सीखते हैं। तो CSV रीड करने का सिंपल सा एक प्रोग्राम है, ओके, दिस वन, and this is again you can keep as it is in your program, okay, and it will read your what do you say, CSV, any kind of CSV TS file, okay, so any kind of .csv file, और आपको रिटर्न में वो डेटा प्रोवाइड करेगा। Sir, तो I'll वो just फेक सॉरी टू इंटरप्ट, फेकर हाँ पार्सर जो है वो इंस्टॉल करने के लिए जो सिंटैक्स है वो एक बार भेजोगे सर? हाँ हाँ, CSV पार्सर रहेगा, Faker is different।
You can install these two things in your terminal. Okay, you can do it later on also. So simple read CSV function है. Okay, I'm doing an export because I can import in any of the spec file. Okay, this CSV function is taking one parameter, which is nothing the path of your whatever CSV file है. अभी right now users.csv file का जो भी path होगा वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे. And this method or this function is returning a promise. सो प्रॉमिस का जो फंडा मैंने आपको कल बताया था कि प्रॉमिस हम जब किसी को करते हैं और वो कंप्लीट होने के बाद फिर अवेट आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे प्रॉमिस का क्या होता है. प्रॉमिस दो चीज़ें दे सकता है, या तो रिजॉल्व या तो रिजेक्ट. रिजॉल्व मतलब काम कंप्लीट हो गया एंड इट हैज़ रिजॉल्व, इट हैज़ गिवन द रिजॉल्व. और रिजेक्ट यानी वर्क और ऑपरेशन हैज़ नॉट बीन डन सक्सेसफुली एंड देन इट विल गिव रिजेक्ट. Okay, so this is nothing but an arrow function which will be returning a new promise, resolve or reject. This again is a funda of JavaScript. तो results करके हमने एक array बनाया है. Okay, array बनाया है which is of type any. Any मतलब कुछ भी store कर सकते हैं उसमें. कि comma separated values है, string भी हो सकती है, boolean भी हो सकती है, anything. And then using fs.create read string. Okay. I'm giving the path which is coming from here, so I'm reading each and everything from that particular path. Okay, this is again part of your string, something that I'm not very much sure about what it does. I'll just give you a brief idea to what I understand. He's just taking it into a pipeline CSV, and for each and every row, okay, it will push the results, sorry, it will push each and everything from that particular row into results array. तो ये results array है, उसमें एक एक वैल्यू को पुश करेंगे. ठीक है, एंड इन द एंड ओके इट विल गिव द एंटायर रिजल्ट्स एज एन array. तो पहले तो क्या करेंगे, एक एक रो को हम पुश कर रहे हैं इन द रिजल्ट्स array, एंड एट द लास्ट इट इज गिविंग द एंटायर array. If any error comes in, okay, it will give an array which is part of reject. So reject is अगर error आए तो reject और otherwise resolve करके results. ठीक है, so that is how this particular function is there. तो ये आप AI से भी बना सकते हो या यही चीज़ कॉपी पेस्ट करके रख दोगे तो भी कोई इशू नहीं. मैंने ChatGPT से ही क्रिएट किया है फंक्शन और कॉपी पेस्ट किया. I have not created it all myself. मैंने खुद से नहीं बनाया, ChatGPT से बनाया. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फंक्शन है रीड CSV का. अब उसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, ये users.csv पे डेटा करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है, और रीड CSV.ts में हम लोगों ने फंक्शन रख दिया. अब जो मेरी स्पेक फाइल है उसमें व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू से रीड CSV. Let me import read CSV. This is a function and that's why I'm saying it into curly braces. जैसे test और expect आपका function है ना, it is inside curly braces. Read CSV is also a function which is inside curly braces. And where I want to read from, again same folder, data read CSV. Data read CSV. Read CSV is a TS file. Clear? तो ये आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, और यहाँ पे अभी इसको हम कमेंट कर देंगे which is part of your JSON NTR का CSV. So हमने पहले क्या किया, first of all we created a users.csv file. We entered the information. Later on we created read csv.ts file जिसमें simple सा function है which I'm saying export, and then in my test spec file I'm importing or referencing it in this particular specification file. Now I want to read the data. How to read that data? Simply I'm saying read CSV and the path of my .csv file. So
पाथ वहीं पे डेटा के अंदर users.csv तो पाथ विल प्रोवाइड now ये जो मेरा फंक्शन है read csv फंक्शन it is giving me a promise, it is returning a promise, and because it is returning a promise I'm saying await. ठीक है, that is the funda. जब भी कोई भी फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करेगा हमें await यूज करना है. फिर method is also returning a promise, we have to use. तो await लिख दिया आपने. अब जब ये रीड कर देगा कंप्लीट यूजर्स फाइल को, है ना, और ये सारा फंक्शन जो भी है रन हो जाएगा पूरा का पूरा एरे में कन्वर्ट करके जब आपको रिटर्न करेगा तो वो सारा हम कहाँ डेटा स्टोर कर रहे हैं यूजर्स. अब ये जो यूजर्स है दैट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना. यूजर्स के अंदर का जो डेटा इन्फॉर्मेशन हम चेंज नहीं कर सकते. इट इज नथिंग बट एरे व्हिच इज स्टोरिंग ऑल द CSV डेटा इन एन एरे फॉर्म. अब मुझे यूजर नेम और पासवर्ड यानी CSV में जो भी था users.csv में यूजर नेम पासवर्ड था वो मुझे एक्सेस करना. तो पहला रो जो है यूनिकोड टेस्ट 1 तो आई विल से यूजर्स ऑफ 0 डॉट यूजर नेम users.0 ऑफ पासवर्ड. Probably I'll say 1. That would be the second row and second. ठीक है, सिर्फ 2 लाइन लिखनी है. आप 2 भी नहीं, एक ही लाइन लिखनी है. दिस पर्टिकुलर लाइन to read your CSV, and this is nothing but a function which you have to save in a .ts file and store it in any of the folder. तो मैंने डेटा में रखा है because it is related to reading the data. That's it. Again, you don't have to create it on your own. आप ChatGPT का हेल्प ले सकते हो या फिर आप Copilot से भी बना सकते हो. यहाँ से भी आप बना सकते हो. तो यहाँ तक समझ आया. रीडिंग अ CSV फाइल, अंडरस्टूड दिस पार्ट. Yes, sir. Everyone? Sir, but again, why do we need it in CSV format, sir? यहाँ पे एक्सेल शीट का नहीं आएगा कंसेप्ट. यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में आप स्टोर करोगे इंफॉर्मेशन. जैसे आपने सेलेनियम में एक्सेल शीट सीखा था ना, एक्सेल शीट में डेटा स्टोर करते थे एंड यू यूज्ड टू रन योर डेटा ड्रिवन टेस्टिंग. तो सेम फंडा कम्स ओवर हियर इन केस ऑफ CSV फाइल. सर यानी कि मतलब जब टेस्ट केस रन कर रहे हैं तो जो हमें वैल्यूज एंटर करना है वो CSV फाइल में स्टोर करेंगे. हाँ, लेकिन अगेन यू हैव ऑप्शन कि आप CSV में स्टोर कर सकते हो या तो फिर JSON फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकते हो. ओके. JSON I would suggest is more better and easier way. CSV again is easier way, but JSON थोड़ा फास्ट रीड करता है कंपैरेटिवली. फास्ट मतलब वो आपको पता भी नहीं चलेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है. तो मैंने दोनों तरीके आपको बताया, किसी भी तरीके से आप रीड कर सकते हो. Hope this is clear, guys. Understood? Yes, sir. Now last one is your Faker library. So as I said, Faker library में आपको you have to install this first of all. You can install @faker-js Faker library. And what I have done, I have created another spec file. Just to explain that. I'm saying this from playwright test because मैं expect यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, इसलिए test ही रखते हैं. Generate user from faker data. So faker data.ts file I have created, wherein I'm generating actually the faker
fake data, I would say, not faker, fake data. Okay, so I'm importing faker from faker library, and then there is a function called as generate user. You can give again any name, generate data. You can give that kind of name also. It's a simple function. Okay, and what that function is doing, it is returning some values. What are those values? Okay, now you can see this curly braces. Curly braces represents object. है ना, जब भी आप इस तरह का ब्रैकेट देखोगे तो ये रिप्रेजेंट करता है एरे, राइट, और ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट. सर पर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट ऐसे लिखा नहीं है, तो नहीं, कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है. रिटर्न तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं. इट्स गोइंग टू रिटर्न द एंटायर ऑब्जेक्ट. जैसे अभी आपने जेसन देखा ना, जेसन ऑब्जेक्ट, ये पूरा एक जेसन ऑब्जेक्ट, यही चीज वो रिटर्न कर रहा है. ये आपका डेटा है, इसमें ये की है और ये वैल्यू है. और ये जो वैल्यू है ये मैं फेक जनरेट करूंगा. ये मैंने अभी हार्ड कोडेड लिखा है यहाँ पे, है ना, ये मैंने हार्ड कोडेड लिखा है, खुद से लिखा है. लेकिन अब यहाँ पे देखोगे तो ये फर्स्ट नेम एक की है, और ये फर्स्ट नेम आपका रैंडम है. रैंडम एज इन वो आपको नहीं पता कि कौन सा नाम आएगा जनरेट होकर. It will be very much random in nature. It is coming from faker data. तो आपको कुछ रैंडम डेटा जनरेट करना है ना, बहुत सारा फॉर्म फिलअप करना, मल्टीपल टाइम्स फॉर्म फिलअप करना विद डिफरेंट डेटा, देन दिस लाइब्रेरी विल बी हेल्पफुल. काफ़ी यूज आ सकती है अगर फॉर्म्स है, डमी डेटा पास करना है, तो दिस विल बी एक्ट एज अ गुड सोर्स. तो आप मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो. जैसे जनरेट यूजर के लिए बनाया, आप कोई दूसरे चीज़ के लिए भी बना सकते हो. एंड यू कैन सी, जैसे यहाँ पे मैंने अभी पासवर्ड लिखा है, यहाँ पे मैं कॉमा करके एड्रेस लिख देता हूँ, एंड आई विल से कॉमा, सी मुझे वो दे दिया उसने ऑप्शन. सो आई विल से faker डॉट लोकेशन स्ट्रीट एड्रेस. तो अगेन दिस स्ट्रीट एड्रेस विल बी रैंडम. तो ऐसे जितने आपको डेटा चाहिए आप डेटा लेके आ सकते हैं, जो जनरेट कर सकते हैं. सो इट्स नथिंग बट एक सिंपल एक फंक्शन बनाना है, और उसके अंदर रिटर्न के अंदर आपको जो भी डेटा चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और वॉट एवर काइंड ऑफ डेटा यू वांट, यू जस्ट कीप इट ओवर हियर, एंड आफ्टर कोलन फ्रॉम द faker library you can call it. जैसे यहाँ करोगे, there are different options, right? Different options. There are different airline, date, food. There are different है, पर्सन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. नंबर में जाओगे तो नंबर डॉट, say for example you have to give some kind of this kind of data, है ना, integer from 1 to 1000, ऐसा कुछ, जैसे घर का नाम नंबर होता है, तो वो नंबर 1 to 1000 में से आ जाएगा, तो फिर आपका एड्रेस को. So this is generating the faker, and then I'm just calling it over here in my test. I'm saying const user. अब आपका const आया, the reason is कि generate user जब मैं कॉल करूँगा method, तो it is giving me the entire object. It is giving me the entire object with all the information, first name, last name, email, password, everything. Those all information I'm storing in user as a object, and from that object I'm accessing everything, first name, last name, email, password. Okay, so you just have to write import generate user. Generate user is a function. Whenever function comes in, curly braces has to be mentioned.
from faker data, and then you'll say, okay, so right now I'm using generate user. Async function is there. Test is async function. So the test is having an async function, and then in that I'm calling generate user method, and whatever data it's going to return me, I'm storing in user object. और यूजर से मैं फिर each and every keys को कॉल कर रहा हूँ. These all are key. First name, last name, these are key. I'm calling them. तो उसका अगर हम रन भी करेंगे तो ये रैंडम डेटा जनरेट होता है. See, फिर for the previous one. This is Hello. this is email ID. Last name, first name. अच्छा बराबर क्लियर आया को कैसे यूज कर. अभी मैंने कंसोल डॉट के क्लास यूज किया. आपका हो सकता है कि कोई फील्ड होगा जिसके अंदर आपको फिल कराना है, इंफॉर्मेशन टाइप कराना है, तो वहाँ पे आप ये पास कर दोगे यूजर डॉट फर्स्ट नेम, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर फर्स्ट नेम फिल हो जाएगा. हाँ तो आ गया क्या एडजस्ट कर दूँ. Let's mute yourself. Everyone clear with this part? कपाट में कोई तो बात नहीं यार, बीजा मानी हो गया. Yes sir, but सर आप रियल लाइफ में मतलब जब आप टेस्टिंग करते हैं, हाँ वो टेस्टिंग करते हैं तब ये फेकर का भी यूज होता है. जम्मू जम्मू तक. हाँ, that I'll explain you. अभी आप समझो, देखो जैसे आपका टेस्ट 2 स्पेक फाइल था ना, जिसमें आप यूजर नेम और पासवर्ड देते, बट यहाँ पे हम डमी नहीं ले सकते, राइट? क्योंकि यहाँ तो आपका एक हार्ड कोडेड ही इंफॉर्मेशन आएगा, तो आप वो जेसन में या फिर CSV से रीड कर सकते हो. डमी जहाँ कहाँ पे आएगा, जहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा. जैसे मेरे एप्लीकेशन में विटनेस की इंफॉर्मेशन है, तो विटनेस मुझे इंफॉर्मेशन स्टोर करना. अगेन इट इज काइंड ऑफ अ पेज वेयर इन मल्टीपल फील्ड्स आर देयर, तो आई विल बी यूजिंग फेकर. लेकिन जैसे ड्रॉप डाउन है, चेक बॉक्स है, वहाँ पे फेकर नहीं आएगा. वहाँ पे तो ड्रॉप डाउन में से ही वैल्यू सिलेक्ट करेंगे. चेक बॉक्स यानी मल्टीपल ऑप्शन है, तो उसमें से चेक बॉक्स सिलेक्ट करेंगे. तो फेकर कहाँ पे आएगा, जहाँ पे एक काइंड ऑफ फॉर्म है, एक पेज है जिसमें अलग अलग इनपुट फील्ड्स है. इनपुट एज इन इट इज टेकिंग सम इनपुट एंट्री टेक्स्ट फील्ड, वहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं. रैंडम डेटा जनरेट करके हमें रैंडम डेटा उसमें इनपुट करना है. जबकि जेसन या CSV हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे मुझे हार्ड कोडेड इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, बट वो हार्ड कोडेड इन्फॉर्मेशन मेरे टेस्ट में नहीं चाहिए मुझे. जैसे मैंने यहाँ पे समझो यूजर नेम पासवर्ड लिख दिया होता फिल के अंदर, तो कल को उठ के मुझे अगर चेंज करना होता यूजर नेम पासवर्ड, तो आई हैव टू कम टू दिस टेस्ट फंक्शन एंड देन आई हैव टू चेंज इट ओवर हियर. बट इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करूँगा, जेसन में जाके उसे चेंज करूँगा और मेरा प्रोग्राम वैसा का वैसे रहेगा. तो जेसन में इंफॉर्मेशन चेंज होगी, ना कि मेरे टेस्ट में. Clear, guys? Understood? कहाँ यूज कर सकते हो, मतलब किस केस पे यूज कर सकते हो, क्या चीज? यस जेसन और CSV वहाँ यूज करना है जहाँ पे आपको हार्ड कोडेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, पहले से पता है, लेकिन हमें कोड में यूज नहीं करना है उसे. हम एक अलग सेपरेट फाइल में उसको स्टोर कर रहे हैं और फिर अपने टेस्ट में उसको रीड कर रहे हैं. और रीड करना बहुत सिंपल है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. जेसन में हमने देखा है, you just have to import your JSON file, okay, and then start reading it. Same goes for CSV. You have to create a function with CSV. You have to give the path, okay, and then जो भी पूरा CSV रीड करके आएगा वो इन्फॉर्मेशन से आप यूज करके रीड करेंगे.
hardly 1 or 2 lines you have to write. Faker data, again you are creating or generating the faker data there first of all, and then reading that by calling that function. So when you call that function, the entire data will be coming and stored into this user or whatever name you want to put, and then from user dot first name, that will your access. Okay, basic understanding होनी चाहिए. बाकी again as I said, these all things will be created by your Copilot or Chat GPT. You just have to copy and paste. But हाँ, हमें पता होना चाहिए कोड क्या कर रहा है, ताकि कभी कुछ प्रॉब्लम्स आए तो we can resolve that also. ठीक है, यहाँ तक के लिए रखते हैं. आई बिलीव अपेक्षा का सेशन है आफ्टर 15 minutes, तो लेट गो टेक सम ब्रेक. Yes, sir.